प्रीवियस लेक्चर में हमने एल कॉमर्स लोकेशन बेस्ड जो है वो किस तरीके से काम करता है उसके रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था। आज उसके प्रैक्टिकल के थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि हाउ टू यूज लोकेशन, जीपीएस कैसे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, विथ मोर एंड मोर वायरलेस हैंडलेड devices like PDAs, cellular phones, and pocket PCs, there are significant opportunities for the growth of m-commerce. All through mobile commerce enables access to goods and services regardless of the location of buyer or seller. In many situations, the specific locations of the buyer and seller is important to the transactions. Today, various locations, specific applications and services are emerging. These applications track the user's location in order to deliver a service or product. The use of technologies which provided the location information for business purpose is known as L-commerce. ठीक है, location based commerce. The technologies uses the geographical location of the mobile devices that determine which applications are approached based on that area. It enables users to log their locations, track the locations of another persons, and find places such as a bank or restaurant. The technology works by using signals for GPS, cellular, and Wi-Fi sources. The global positioning system, that's called GPS, right? MCQ questions में आएगा, what is GPS? GPS in the sense global positioning system is the most accurate in determine a mobile device's positions. It is based on worldwide satellite tracking systems where the GPS signals are generated by a group of satellites that orbits around the earth. To locate a point, mobile devices will utilize 3 satellites to create interacting point that locates the device within a 500 meters. This is known as triangulations. If the GPS signal is poor, weak, or blocked, the mobile device can use the signals for cell towers and Wi-Fi hotspots. These signals do not broadcast their own locations, but smartphone companies use database that store the location of these sources. यहाँ पे आप देखिए, नॉर्मली जो लोकेशन है वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये मोबाइल से आपको दिया गया है लोकेशन, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, ठीक है, और इसके तरीके से हम उसका डिस्टेंस देख पाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फिल्टरिंग सर्च रिजल्ट्स आफ्टर फिल्टरिंग, हमें नॉर्मली कहीं पे रेस्टोरेंट या कुछ फाइंड करना है, ठीक है, तो उस तरीके से हम कर पाएंगे। देखिए नॉर्मली जो आपको दिखाई देता है यहाँ पे, और वो भी आपको दिखाई देता है कि रेस्टोरेंट जो है वो, तो रेस्टोरेंट कहाँ पे, कौन सा हमें पंजाबी के लिए फाइंड करना है या चाइनीज के लिए फाइंड करना है, तो पर्टिकुलर हम फिल्टरिंग करके भी वहां पे आप फाइंड कर सकते हो। और वो फाइंड करने के बाद प्रॉपर उसका रिजल्ट आएगा और आपको दिखाएगा कि उसका लोकेशन कहाँ है। यहाँ पे देखिए साइन इन द गूगल प्लस, और यहाँ पे हम देखिए एट टोमेटोज रेस्टोरेंट, तो वहां पे हो गया, तो वो आपको वहां पर डिटेल्स दिखाएगा। फिर डिस्टेंस, आपको नजदीक के कितने डिस्टेंस में वो चाहिए तो उसका भी डिटेल्स आएगा, ठीक है, हमें काफी दूर जाना नहीं है, बारिश गिरी और नजदीक में जल्दी हमें भूख लगी है, तो उसके रिलेटेड हमें वहां पे पूरा डिटेल्स आपको दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस के हिसाब से अगर दूर जाना है तो उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, let us discuss another example of location based service where we can use maps to find the path of the destinations. For example, the user wants to reach a particular destination whose path is not known to him. Using the maps, the location based service tracks the user's current locations. As in figure 5.15, the current location is indicated using blue color pointer. Now to find the destinations, we can either type or speak the destinations name as shown in figure 5.16. यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है, यू हैव टू कलर करंट लोकेशंस, आप जहां पे होगे मैप्स में वहां पे आपको दिखाएगा इस तरीके से
एरो के जरिए दिखाएगा या राउंड के जरिए आपको दिखाएगा। एंड हियर नेविगेशन इज द स्पीक डेस्टिनेशन। अगर आपको यहां से गोवा जाना है तो यू जस्ट स्पीक अप टू दैट गोवा, तो वो वहां का आपको पूरा डेस्टिनेशन का पाथ दिखाएगा। देन टाइप डेस्टिनेशन तो वो दिखाएगा। स्टार प्लेस, अगर कुछ ऐसा अच्छा प्लेस है वहां पे हमने स्टार करके रखा है तो वो भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यूज ऑफ मैप्स टू फाइंड द यूजर्स लोकेशंस, उस तरीके से आपको दिखाई देगा। ऑप्शन टू एंटर डेस्टिनेशंस, ठीक है, वो वहां पे उस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये देखिए वहां पे आ रहा है, सिलेक्ट द डेस्टिनेशन, रूट द डेस्टिनेशन, इस तरीके से आपको पूरा दिखाई देगा। ठीक है, ये यहाँ का जीपीएस जो है वो आपको दिखाई देगा। नाउ फॉलो द रूट, कहाँ से कहाँ जाना है, कितने कितने पे राइट लेना है, कहाँ पे लेफ्ट लेना है, कितने मीटर से आगे जाना है, वो सभी कुछ आपको दिखाएगा। और नाउअडेज यू आर मैक्सिमम यूज्ड मोबाइल फोन्स, आई नो वेरी वेल दैट कि आप लोग को ये सब ऑलरेडी पता होगा, आप लोगों ने यूज भी किया होगा। अगर यूज नहीं किया है तो एक बार उसको चेक करके देखिए, आपको कहीं जाना है और जीपीएस में डाल के देखिएगा कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जीपीएस में आने के बाद प्रॉपर हम जो रास्ते से जा रहे हैं तो वो रास्ता आपको वहां पे प्रॉपर दिखाई देता है कि नहीं। The distance to the destinations and approximate time to reach the destination is also shown in figure 5.19। ये सबसे अच्छा है कि आप कितने टाइम पे वहां पे पहुंचने वाले हो, कितने मिनट्स लगेंगे। क्योंकि यार क्या रहता है, कहीं इंटरेस्टिंग प्लेस पे हम जाते हैं तो वहां पे हमें जाने का काफी एक्साइटमेंट रहता है, तो हमें कितने मिनट्स लगेंगे, अभी हम कहाँ पे है, ठीक है, विथिन कितने मिनट्स के अंदर हम वहां पहुंच पाएंगे, कितने आवर्स में हम पहुंच पाएंगे, तो उसका सभी डिटेल्स वहां पे आपको जीपीएस के थ्रू आपको दिखा देता है। और नॉर्मली उसमें भी वॉइस का सिस्टम रहता है, अगर हमने गलती से राइट की जगह लेफ्ट ले लिया तो वहां से अंदर से आपको आवाज आएगी टर्न टू राइट। ठीक है, रॉन्ग वे से हम जा रहे हैं तो उसका भी इंफॉर्मेशन वहां पे आपको दिखाई देगा। लोकेशन based service offers convenience and opportunities to provide services that are more quick or precise and can meet to customers needs. Some example of location based applications are informations or directory services. Dynamic yellow pages automatically inform to the users about the nearest restaurants, parking facilities and traffic updates. ठीक है, ये उसके इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी से सर्विसेज जो है वो येलो पेजेस से ऑटोमेटिकली हमें इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, नजदीक में रेस्टोरेंट जो है, पार्किंग फैसिलिटीज है या नहीं, ट्रैफिक का अपडेट्स भी हमें जीपीएस के थ्रू मिल पाएगा कि जो रास्ते से हम जा रहे हैं तो आगे उसका कितना ट्रैफिक है। ठीक है, तो उसका सभी डिटेल्स यहाँ पे जीपीएस के थ्रू हमें मिल पाएगा। देन ट्रैकिंग सर्विसेज, ट्रैकिंग ऑफ एसेट्स, लोकेटिंग फ्रेंड्स इन द जियोग्राफिकल लोकेशंस, ट्रैकिंग स्टोलन कार्स, ट्रैकिंग ऑफ चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स। ठीक है, ये नॉर्मली ट्रैकिंग सर्विसेज क्या रहता है कि अगर हमने कुछ कुरियर किया है तो उनके ऑनलाइन नंबर से हम चेक कर पाते हैं कि हमारा कुरियर कहां तक पहुंचा है। ठीक है, मेजोरिटी पोस्ट ऑफिस ऑल्सो सर्विस दिस सर्विस प्रोवाइडेड, राइट। पोस्ट ऑफिस वाले भी ये सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं कि अभी उनका नंबर जो है तो हमारा जो कुरियर है वो कहाँ पे अभी है, कहाँ पे पहुंचेगा, कितने टाइम में पहुंचेगा, वो सभी डिटेल्स यहाँ ट्रैकिंग के थ्रू हमें मिल पाएगी। देन इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस, रोड साइड असिस्टेंस, पुलिस एंड फायर रिस्पॉन्स। तो ये सभी जो इमरजेंसी सर्विस है वो भी हम मोबाइल के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, सो इमरजेंसी सर्विस पे आपके फोन में भी आपको बताया है कि अगर आपका फोन लॉक होगा तो लेफ्ट साइड पे देखिए इमरजेंसी कॉल्स दिए हैं, उसमें सब नंबर्स दिए हैं। एडवर्टाइजिंग प्रमोशंस, टारगेट एड्स, प्रमोशंस मैसेजेस, कस्टमर आइडेंटिफिकेशंस इन अ स्टोर। ठीक है, अगर आपका कोई एडवर्टाइजमेंट करना है तो उसके लिए स्पेशल एड्स, प्रमोशंस मैसेजेस, कस्टमर आइडेंटिफिकेशंस, ये सभी कुछ भी हम मोबाइल के थ्रू देख सकते हैं। हमारा मैसेज अगर कहाँ पे गया होगा तो जो स्कीम्स है वो नॉर्मली हमने सिलेक्टेड जितने कस्टमर्स है उनके लिए रखी है, तो हम चेक कर पाएंगे कि भाई हमारा मैसेज है, हमारा कोड आया हुआ है, हाँ हमें आया हुआ है, तभी जाके उसको वो चीज वहां पे प्रोवाइड या वो ऑफर्स उसके लिए एलिजिबल रहेगा। मैपिंग, क्रिएटिंग मैप्स ऑफ स्पेसिफिकल जियोग्राफिकल लोकेशंस। प्रॉपरली जो मैप्स होगा
तो उसके थ्रू पता चलेगा कि वो लोकेशन क्या है। ठीक है, नेविगेशन प्लॉटिंग रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए वहां पे आपको ये ऑप्शंस दिया गया होगा। नॉर्मली मैं आपको दिखाई देता हूं, लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था विकीमापिया करके, जो आपके मोबाइल में भी दिखा देता है सैटेलाइट व्यू। देखिए अभी यहाँ पे उसके सब ऑप्शंस दिए हैं। दिस वन इज सैटेलाइट, ठीक है, मैप के थ्रू दिया हुआ है, गूगल सैटेलाइट के थ्रू दिया है, गूगल हाइब्रिड के थ्रू दिया है, ठीक है, गूगल मैप दिया है, और ये बिंग्स है, सब डिफरेंट टाइप से दिए। अगर हमें मैप के हिसाब से जाना है तो हम इस तरीके से जा सकते हैं। ये देखिए नॉर्मली अभी जो दिखाई दे रहा है वो मैप के थ्रू है, हमें सैटेलाइट के थ्रू जाना है तो हम सैटेलाइट के थ्रू भी जा पाएंगे। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे सब जगह का आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है कि ये क्या है, चेन्नई है। अभी यहाँ पे हम सीधा सर्च करते हैं बड़ोदरा से और एंटर करते हैं। ये देखिए, तो बड़ोड़ा में भी काफी सब जगह पे आपको वो डिटेल्स दिए गए हैं। ये देखिए सेंट्रल जेल है, वहां पे हमें कभी नहीं जाना है, ठीक है, देखने के लिए जा सकते हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं कहेगा कि सर मैं वहां पे रहने जाने वाला हूँ। गॉट इट। सो यहाँ पे देखिए सब डिफरेंट नेम दिए हुए कौन सी जगह है, और ये फ्री एडिटिंग है, उस पर हम हमारा खुद का भी लिख सकते हैं। और ये पूरा सैटेलाइट व्यू है, जो यहाँ से हम और जूम करेंगे तो भी दिख पाएगा। ठीक है, ये उसके कहीं सैटेलाइट व्यू से दिखाई देगा, किसी के घर के अंदर हम नहीं जा सकते, सो डोंट ट्राई टू दिस। और ये येलो कलर्स के जो है वो सब मेन रोड है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम पर्टिकुलर जिसके घर पे या कहीं पे भी लिखा होगा तो वहां पे आपको वो चीज दिखाई देगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख पाएंगे। और ये ऐड प्लेस का ऑप्शन दिया है, पर्टिकुलर आपको आपका जो घर है उस पे आपको लिखना है माय स्वीट होम या कुछ भी, तो आप यहाँ पे ऐड प्लेस करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सैटेलाइट व्यू देख सकते हैं। और वडोदरा में यहाँ पे कहीं पे आपको जाना है, पर्टिकुलर माजलपुर, देन एंटर। ठीक है, सो इस तरीके से आप सभी जगह पे देखिए MGVCL, अकोटा स्टेडियम, ठीक है, सभी कुछ यहाँ पे जो वेल नोन प्लेसेस है वो सभी आपको वहां पे दिखाई देंगे। और जो रास्ता है वो रास्ता सीधे सीधे आगे जाएगा। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, डेंटल कॉलेज दिखाई दे रहा है, इस तरफ हम आ रहे हैं। ये देखिए जो इसका व्यू है, ठीक है, मोतीबाग क्रिकेट ग्राउंड, गायकवाड़ म्यूजियम, ये सभी डिटेल्स इस तरीके से आपको आप उस पे नाम, जैसे देखिए ये रेलवे स्टाफ कॉलेज है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से पूरा आपको डिटेल्स दिखाई देगा किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मली अगर किसी को आप बताना चाहते हो या घर पे बैठे किसी को रास्ता बताना चाहते हो तो भी आप वहां से बता सकते हो। तो इस तरीके से काफी सारे यूज इसके अंदर हमें दिए गए हैं। अभी काफी सारे ऐसे सिक्योरिटीज इश्यू रहते हैं इन ई कॉमर्स एंड कॉमर्स ऑल्सो, बिकॉज क्या रहता है, इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क सिस्टम दैट कंसिस्टेंट ऑफ थाउजेंड ऑफ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क्स connected together. These private computer networks are exposed to potential threats from anywhere on the public network. नॉर्मली क्या रहेगा, पब्लिक जो नेटवर्क रहेगा उसमें काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए कि हमने कुछ ऑर्डर किया है, बीच में किसी ने वो ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दिया, या बीच में किसी ने वो ओरिजिनल चीज दे ली है और उसकी जगह में दूसरा कुछ आ गया, बीच में किसी ने पेमेंट हमारा जो है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जहां पे हमारा पेमेंट पहुंचना चाहिए वहां पे हमारा पेमेंट पहुंचा ही नहीं है, और वहीं पे हम नंबर ऑफ कंप्लेंट्स करते रहते हैं। तो वहां से भी वो लोग बोलेंगे आपको कि सर आपका कोई आया नहीं है, आपके पास प्रूफ होगा लेकिन उनके पास वो चीज होगी नहीं। तो काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया कि 10 क्वांटिटी का जो हमने ऑर्डर दिया है और वो 100 क्वांटिटी का पेमेंट वहां से करेगा। नॉर्मली क्या रहता है, हमें पता चल जाता है कि भाई ऐसा होगा, लेकिन कई लोग क्या है कि इतना प्रॉपर नहीं देखते, सीधा पेमेंट कर देते कि भाई कितना अमाउंट आया है, लेकिन वो चेक नहीं करते कि भाई कितना क्वांटिटी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ है। ओके, सो नॉर्मल अमाउंट में
हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो चीज 100 रुपए में मिलती है वही चीज अगर 1000 का आप काउंटिंग करोगे, ठीक है, तो नॉर्मली पता तो चलेगा ना कि यहाँ पे हमारी गलती हो रही है। तो वहां पे जाके हम चेक करेंगे, तभी पता चलेगा कि हमारी जो क्वांटिटी है वो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, वो उसमें ज्यादा हो गई है। कॉन्फिडेंटली it refers the it refers to the secrecy of the informations to that unauthorized user cannot read it. It is achieved by using cryptography. नॉर्मली क्या करेंगे, क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज वहां पे यूज करेंगे। अभी क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज से क्या होता है, तो क्रिप्टोग्राफी जो लैंग्वेज हमारी है, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। अगर आपको किसी को पर्सनल मैसेज करना है तो विदाउट रीड, this one is normal message, how are you, this one is normal message in the plain text. बट क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज क्या है, अगर हमें किसी को मैसेज करना है और क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज में वो मैसेज हमें उनको भेजना है, तो देखिए सबसे पहले उनका नेक्स्ट वर्ड आपको लेना है। अगर ए है तो हमें क्या काउंट करना है, बी काउंट करना है। सी है तो क्या काउंट करना है, डी काउंट करना है। देखिए एच के बाद क्या आएगा, आई, ओ के बाद क्या आएगा, पी, डब्ल्यू के बाद एक्स, ए के बाद बी, आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, ई के बाद क्या आएगा, एफ, वाई के बाद क्या आएगा, जेड, ओ के बाद क्या आएगा, पी, यू के बाद वी। तो जो हमारा मैसेज जनरेट होगा ना, वो नीचे वाला मैसेज जनरेट होगा। दैट्स कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज। ताकि अगर बीच में ऐसा कोई यूजर्स है जो हमारा मैसेज रीड करना चाहता है या तो हमारा मैसेज देखना चाहता है, तो वो इस तरीके से इतना क्विकली ये नीचे वाला जो मैसेज है ना वो रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, नॉर्मली क्या रहता है, जो चोर लोग होते हैं वो भी पीएचडी करते हैं, उनको भी पता रहता है कि भाई क्या है कैसा है। और नॉर्मली क्या है, लोग वही हम हमारे हिसाब से सामने से इनको इन्फॉर्म करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं कि प्लीज मोस्ट वेलकम एट माय होम, बिकॉज 3 दिन 4 दिन के लिए हम नहीं है, ठीक है, तो आप घर पे आइए। क्योंकि जो चोर लोग होते हैं वो भी तो सोशल यूज करते रहते हैं ना, तो वो भी चेक करते रहते हैं कि भाई क्या है, अपडेट्स क्या है। 3 घंटे के लिए हम गए हुए, 4 घंटे के लिए हम कहीं पे गए हुए, तो वो अपडेट्स हम नॉर्मली करते हैं और विद कैप्शन के साथ, ठीक है, आई एम एट शिमला विद माई फैमिली। ठीक है, तो हम किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं या किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, आई डोंट नो दैट, पता है। तो इस तरीके से हम सामने से हमारे घर पे बुलाते हैं चोर को, क्या आप आइएगा, शांति से नाश्ता वास्ता कीजिए, क्योंकि हम शिमला गए तो अगर हमें कोई फोन करेगा तो ऑन द स्पॉट तो हम नहीं पहुंचने वाले। और आप इस तरीके से कीजिएगा ताकि किसी और को पता नहीं चलेगा। गॉट इट। तो इस तरीके से भी हमें भी केयरफुल रहना है कि हम कहीं पे भी जाते हैं तो नॉर्मली सब टेक्निक्स रहते हैं कि घर पे कोई है ऐसा इन्फॉर्म करने के लिए, भले लाइट बिल ज्यादा है लेकिन एक लाइट चालू रख के जाते हैं, ठीक है, ताकि किसी को लगे कि भाई अंदर कोई है। लेकिन कोई नॉन पर्सन है, उनको पता है कि वो एवरी टाइम ऐसा करके जाते हैं ताकि हमें पता चले। तो इस तरीके से आप कुछ भी अपडेट करते हो तो बी केयरफुल, सोचिएगा किस तरीके से कर रहे हो। दिस प्रोटेक्ट्स द डेटा फ्रॉम प्राइवेट अटैक्स एंड एंश्योर्स दैट द मैसेजेस इज नॉट रिवील्ड or leaked to anyone as it travels to the destination. It helps in protecting the confidential data like credit card number. ठीक है, अभी नॉर्मली क्या रहेगा, यहाँ पे कॉन्फिडेंटली जो एम कॉमर्स या ई कॉमर्स आप कुछ भी यूज कर रहे हो, तो वो लोग वहां पे आपको एक कॉन्फिडेंस दे रहे कि आप जो मैसेज हमें हमारे तक भेज रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस मैसेज हमारे तक ही रहेगा, कहीं और पे लीक नहीं होगा। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी जो मेन उनके वेबसाइट्स है उन पे से अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि नॉर्मली हमारा मैसेज कहीं पे भी लीक होगा ना, तो पता चलेगा ना कि ये वेबसाइट के थ्रू हमारा मैसेज लीक हुआ है, तो वहां पे उनका जो वेबसाइट है वो या तो बैंड हो सकता है या तो उस पर कुछ लीगल एक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी वो लोग कर सकते हैं। इंटीग्रिटी, it ensured that the information must not be accidentally or maliciously altered, the tempered in transit. The receiver should receive the same message as was sent by the sender. ठीक है, यहाँ पे वो इंटीग्रिटीज यानी कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपने जो हमें मैसेज किया है वही मैसेज हमारे पास आएगा, कहीं पे भी वो मैसेज चेंज होके या उसमें कुछ क्वांटिटी या कुछ वर्डिंग्स चेंज होके हमारे पास नहीं आएंगे ऐसा। ठीक है, तो वो लोग जो एम कॉमर्स है वो जितने भी
एप्लीकेशन से वो सभी लोग वैसा श्योरिटी देते हैं, ठीक है, कि आप जितने भी ट्रांजेक्शन करो वो सभी ट्रांजेक्शन एज अ सेफ हमारे पास कर सकते हो. इफ द मैसेजेस इज अल्टर्ड in between the transaction, it should be detected. This removes the problems of modifying the order quantity in between and later creating the payment problems. यहाँ पे कहीं पे भी पेमेंट के लिए जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो वो सभी कुछ यहाँ पे वो लोग रोक सकते हैं, ठीक है. वैसे सिक्योरिटीज उन लोगों ने सेट किया होता है ताकि अननोन पर्सन या बीच में कोई भी ऐसा हैकर या कोई भी पर्सन उसका जो भी इंपॉर्टेंस डेटा है या पर्सनल डेटा है उनका वो वहां से नहीं ले सकते. ऑथराइजेशंस, इट एंश्योर्स दैट ओनली ऑथेंटिक यूजर्स आर अलाउड टू यूज द सिस्टम, ठीक है. तो नॉर्मली क्या रहता है कि वो एप्लीकेशंस वाले उनका खुद का लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करके देते हैं ताकि वही लोग उसको यूज कर सके. हाँ, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आपने किसी और को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया है तो फिर कुछ होने का चांसेस है, वरना ऐसा कोई चांसेस है नहीं. तो ये सभी सिक्योरिटीज वो लोग पहले से ऐसा सेट करके देते हैं. नॉन रेपुटेशन, इट एंश्योर्स दैट द सेंडर्स ऑफ द मैसेज कैन नॉट डिनाई दैट ही सी हैज सेंट द मैसेज. इट प्रिवेंट्स सेंडर और रिसीवर फ्रॉम denying a transmitted message when in fact they did send it. For example, if customer denies of sending a purchase order for any reasons, that it can be proved that the customer has sent the messages. It is usually accomplished when digital signature or trusted third party in the sense TTP. Normally क्या रहता है, हमने एक बार ऑर्डर कर दिया है, फिर हम घर पे अगर वो ऑर्डर आता है तो मना नहीं कर सकते कि सर ये ऑर्डर हमने किया ही नहीं है, ठीक है. उनके पास फुल ऑन प्रूफ रहता है कि हमारे मोबाइल से ओटीपी गया है या हमारे मोबाइल से ये ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है. तो और वहां पे आप लोगों को कभी भी कस्टमर केयर में या कहीं पे भी फोन करें ना तो आपको वो बताएंगे कि टेक्निकल इश्यू के लिए कि आपका फोन रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है. तो उन आपका आवाज वहां पे ऑलरेडी रहता है. अगर कोई प्रूव करना चाहते हैं या वही लोग प्रूव करना चाहते हैं ना तो वो लोग प्रूव करके देते हैं कि आपने ही हमें फोन किया था, ठीक है, या आपने ही ऑर्डर किया था. तो ये सभी कुछ इनके पास डिटेल्स वहां पे रहता है. इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स, द मोस्ट कॉमन थ्रेट्स दैट आर फेस्ड ऑन इंटरनेट आर malicious code. Malicious code is one that causes damage to computer or system. Malicious code can either activate itself or be like a virus requiring a user to perform an actions such as clicking on something or opening an email attachment. It can also affect network, send messages through email and steal informations or cause even more damage by deleting files. बराबर. malicious code वो नॉर्मली क्या करता है, आपके कंप्यूटर में जितने भी कई फाइल है वो किसी को डैमेज कर सकता है या आपका कंप्यूटर स्लो कर सकता है, ठीक है. नेटवर्क पे काफी इश्यू प्रोवाइड कर सकता है, आपका कंप्यूटर काफी स्लो हो जाता है. इंटरनेट भी है जो उसमें भी काफी दिक्कत आती है. नॉर्मली वायरस कंप्यूटर में काफी इफेक्ट करते हैं. इवन अगर वायरस जो है अगर आपके मोबाइल में भी अगर आ जाता है तो भी दिक्कत होती है. काफी सारे हमारे डेटा डैमेज हो जाते हैं या तो डिलीट हो जाते हैं. कंप्यूटर में भी ऐसा रहता है. वो क्या करता है, खुद ना खुद अपने नए और नए फाइल्स जनरेट करते रहता है. उससे क्या रहता है, आपका जो मेमोरी है वो सबसे ज्यादा यूज होता है और मेमोरी ज्यादा यूज होने से क्या होगा, आपका हार्ड डिस्क पे काफी लोड होगा. नॉर्मली हम अनलिमिटेड खाना खाने जाते हैं तो वहां पे ऐसा करते हैं कि हमारे से जितना खाना है अनलिमिटेड खाते हैं, लेकिन कहां तक, गले तक आ जाता है, तब तक आप खाते रहते हो. नो, उसका एक लिमिट रहता है. सेम थिंग टू दैट के मेमोरी अगर ज्यादा 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 बढ़ती जाएगी तो उसका एक मेमोरी का लिमिट रहेगा, ठीक है. तो वो लिमिट तक वो उसको एक्सेप्ट कर पाएगा, फिर अपने आप वो बंद हो जाएगा. गॉट इट. तो इस तरीके से वो वर्क करता है. दैट स्निफिंग. A sniffer is a program that uses internet to record informations that passes through a computer or router in transit for sender to receiver. Using a sniffer program is like tapping the telephone wire and recording the conversions. Sniffer programs can read email messages, user login, password and credit card numbers. ठीक है.
अभी स्निफर्स क्या करता है, वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट, ठीक है, और राउटर के किसी के भी साथ कनेक्ट करके वो बातचीत कर, अगर हम कोई भी नंबर डालते, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर डालते या किसी के भी साथ हम बातचीत करते, तो वो सभी कुछ वहां पे टैपिंग होता है। तो ये प्रोग्राम नॉर्मली इंटरनेट पे है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इजीली उसको डाउनलोड करें और उसको यूज करें, ऐसा नहीं होता। सबके टर्म्स कंडीशंस और सब होते हैं, ठीक है, और सभी को ये प्रोग्राम्स नहीं दिया जाता। ये स्पेशल फॉर जो डिटेक्टिव या पुलिस में है या आर्मी, वही लोगों को ऐसे प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सभी को ऐसा प्रोग्राम्स प्रोवाइड नहीं किया जाता, वरना सभी लोग घर पे बैठ के यही काम करेंगे। गॉट इट? द डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. Denial of service attack is an attack used to shut down a machine or network, making it insensible to its internet users by triggering the user's computer and its network connections or the sites which the user tries to access. An attacker may be able to prevent the users from accessing email, websites, and online accounts like banking or other services that rely on the affected computer. The users are flooded with hundreds of the thousands of messages that create traffic problem on the network. ठीक है, ये क्या करते हैं? सर्विस अटैक इन द सेंस व्हाट? नॉर्मली आप समझिए कि अगर आप 12th में हो ही, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपका रिजल्ट जब आएगा तो मैक्सिमम ऐसा समझो कि यहाँ पे 5 to 6 लाख स्टूडेंट्स ऐसे जो लोग 12th में है, तो उनका रिजल्ट का डे है, ठीक है। नॉर्मली नेक्स्ट ईयर जून ऐसा होगा तो उसमें आपका रिजल्ट आएगा, या मई में एंडिंग में आपका रिजल्ट आएगा। इस बार तो क्या होगा पता नहीं, ठीक है, कैसे एग्जाम होगा वो भी पता नहीं। तो जैसे भी हमें रिजल्ट देखना है तो आप सिंपल सा समझिए कि जो हैकर होगा तो वो क्या करेगा कि 5 लाख स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूजर है, लेकिन वो 5 लाख की जगह 25 लाख यूजर क्रिएट कर देगा। तो वो क्या रहेगा? वन टाइप ऑफ द सर्विस अटैक, ठीक है। वो नेटवर्क पे इतने सारे यूजर्स क्रिएट कर देगा ताकि क्या होगा, आपका जो सर्वर है जो डाउन हो जाएगा, रिजल्ट आने में काफी टाइम लगेगा, बीच में बंद हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट होंगे, ठीक है। तो ये सभी कुछ उस तरीके से हो सकता है। नेटवर्क पे पूरा ट्रैफिक जैम कर देगा। नॉर्मली ट्रैफिक जैम होता है तो हमें जाने में प्रॉब्लम होता है, टाइम लगता है। सेम थिंग यहाँ पे भी जो है वो सर्विस उनके नेटवर्क पे इतना अटैक करेगा तो पूरा वहां पे वो हमारा जो नेटवर्क है स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स वहां से क्रिएट होते हैं। देन साइबर वैंडलिज्म. Cyber vandalism is the electronic defacing of an existing website page. An attacker replaces the website's original content with her own content. It is example of integrity violations. It is the electronic equivalent of destroyed property or placing graffiti on someone's photographs. कई बार ऐसा हुआ है, आप सबको भी पता होगा। नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉनिक जो है, जितने भी एप्लीकेशन जितने ज्यादा बढ़ रहे हैं उतने प्रॉब्लम्स भी उतने बढ़ रहे हैं। फोटोग्राफ्स के समवन फोटोग्राफ्स पे किसी और का फोटोग्राफ्स, ठीक है, फेस किसी और का है, नीचे बॉडी किसी और का है, ठीक है। लोग स्पेशल ऐसे एडिटिंग करते हैं और कहीं ना कहीं पे ऐसे प्रॉब्लम्स पे क्रिएट होते हैं। इतना पावरफुल एडिटिंग करते हैं कि पता ही नहीं चलता है ओरिजिनल क्या है और डुप्लीकेट क्या है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपका वेबसाइट का जो कंटेंट है सेम टू सेम, ठीक है। एक सिंपल सा है कि सर सेम टू सेम वेबसाइट तो नहीं बन सकता, ठीक है, लेकिन एक वर्ड्स भी चेंज कर देंगे तो पूरा चेंज हो जाएगा। अभी क्या करेगा, वो भी इतना पावरफुल एसईओ करेगा और अब हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आ जाएगा या तो हमारी वेबसाइट के परफेक्ट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मेजोरिटी स्टूडेंट्स नॉर्मल ऐसा समझिए कि अभी ऑनलाइन सब चल रहा है, तो ऐसा है कि भाई हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, लेकिन किसी ने जानबूझ के ऐसा किया कि भाई इस पर मैक्सिमम लोग पेमेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जानबूझ के वही वेबसाइट का सेम टू सेम कलर और सभी कंटेंट उसके हिसाब से हम सेट करते हैं। कंटेंट हमारे आगे पीछे कुछ कर देते हैं, ठीक है। और समझिए कि वडोदरा में VADO उसका जो स्पेलिंग है उसमें एक वर्ड ज्यादा कर देंगे, ठीक है, बाकी आगे का सब सेम टू सेम रखेंगे। तो क्या होंगे, पेरेंट्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, सेम वेबसाइट दो जगह पे दिखाई देंगी, ठीक है।
और जो परफेक्टली यही करने वाला है तो वो मास्टर ब्लास्टर होगा, हमारे से ऊपर उसका वेबसाइट चला जाएगा। उसका अगर एसईओ पावरफुल होगा तो हमारे से ऊपर उसका वेबसाइट चला जाएगा। तो क्या करेंगे, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि वही फर्स्ट वन जो वेबसाइट आता है वही मेन होता है, तो उसी पे क्लिक कर देते हैं, उसी पे पेमेंट कर देते हैं। अभी होगा क्या, पेमेंट कर दिया, मेरा जो डिटेल्स है उसमें बता रहा है कि आपने पेमेंट नहीं किया, मैं आपको फोन करूंगा, अरे सर मैंने कल ही तो पेमेंट कर दिया, आपके में क्यों नहीं दिखा दे रहा है। देन आई विल चेक इट कि कहाँ हुआ है पेमेंट। फिर मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ कि आपने तो गलत जगह पे सर पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, गलत जगह पेमेंट हो गया है, हमारा बाकी का बाकी रहा। तो 3 पर्सन को, और जिसने ऐसा किया है तो वो इंटेंसली किया है तो वो वापिस थोड़ा देगा। ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल प्रोसेस करना पड़ेगा, कंप्लेन करना पड़ेगा, साइबर में कंप्लेन करना पड़ेगा, उसका प्रोसेस लंबे तक चलता रहेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, उसका पेमेंट जो हमारा है वो आएगा नहीं आएगा, वन ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, अगर जेन्युइन कुछ ऐसा हुआ केस और वो पर्सन कौन है वो पकड़ा गया तो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको मनी हमें जो है वो रिफंड करना पड़ेगा, या तो उसको शॉर्ट आउट, उसका कुछ भी जो सॉल्यूशन होगा वो बीच का रास्ता वो लोग निकालेंगे। तो ये सभी प्रॉब्लम्स इसमें होते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। देन स्पूफिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मली क्या करते हैं ये लोग, आपका नॉर्मली अनदर पर्सन है, ठीक है, कोई दूसरा है, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया सेम साइबर वैंडलिज्म में उसी के जैसा है स्पूफिंग के, कोई अनदर पर्सन है। ठीक है, एग्जांपल जो हैकर है वो फेक वेबसाइट गवर्नमेंट का बना के उसका आईपी एड्रेस जंबलिंग करवा के सेम उसी के जैसा वर्क करके फेक वेबसाइट बना के हमें परेशान करेंगे और हम उस पे जाके अपना पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो सभी चीजें यहाँ पे भी इस तरीके से वर्क करती हैं। अभी जो स्पेशल आप जब भी ट्रांजेक्शन करते हो तो ये सभी चीजें हमें बहुत याद रखनी है कि प्रॉपर इस तरीके से हम वर्क करेंगे, और सिक्योरिटी पर्पज से अगर हम वर्क करेंगे तो उसी के हिसाब से हमारा वर्क परफेक्ट होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में आगे का हम देखेंगे।